السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچ نیشنل آرمی کے سرگنا کی گرفتاری سے عسکریت پسندی کے خاتمے اور امن کے ایک نئے دور کے آغاز میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے نئی اسکیمیں متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری مختلف شعبوں میں پاکستان اور دیگر علاقائی ملکوں کے لیے ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ سیکیورٹی کے علاوہ دوسرے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت سندھ بھر میں متاثرین سیلاب کے لیے 150 مراکز صحت کو بحال کرے گا۔ بھارتی حکومت نے بیساکھی میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کو خصوصی ٹرینیں فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینکڑوں طلباء نے بہار اور بھارت کے دیگر شہروں میں مسلمانوں پر حالیہ حملوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایران اور ترکیہ نے اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کے سدباب کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی اجلاس کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین نے اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تائیوان کے گرد 3 روزہ فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ آج مشہور کلاسیکل اور نیم کلاسیکل گائک اسد امانت علی خان کی 16ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمرانہ ناہید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچ نیشنل آرمی کے خلاف کامیاب آپریشن کرنے اور اس کے کمانڈر کو گرفتار کرنے پر ISI کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ آپریشن ہمارے اداروں کی شاندار پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گرفتاری سے بلوچستان میں شدت پسندی کے خاتمے میں مدد ملے گی اور امن کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر نے وزیر اعظم کو ترکی اور شام کے متاثرین زلزلہ کے لیے امدادی چیک بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی مورخ اور محقق الیسٹیر لیم کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے، جن کا گزشتہ ماہ انتقال ہوا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں الیسٹیر لیم کو دانشمند اسکالر قرار دیا، جنہوں نے اپنی تحقیقی کتب کے ذریعے بھارتی دروغ گوئی اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیسٹیر لیم کے انتقال کے ساتھ ہی تنازع کشمیر کی بنیاد کے بارے میں علم و فضل کا ایک دور اختتام پذیر ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے نئی اسکیمیں متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے آج ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ موٹر سائیکلوں اور 800 سی سی تک کی کاروں کو رعایتی نرخوں پر پیٹرول کی فراہمی کا معاملہ زیر غور ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے موسم بہار کے سالانہ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے بعض ذرائع ابلاغ کے تاثر کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم طے شدہ اجلاسوں میں معمول کے مطابق شرکت کرے گی، جبکہ وہ اہم اجلاسوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ وزیر خزانہ نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے IMF کے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ حکومت سے الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہم کرنے کو کہا ہے تاکہ پنجاب میں انتخابات کرائے جا سکیں۔ اس وقت جو حالات ہے پاکستان میں اور جو ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے کہ ایک بینچ سپریم کورٹ کا، تو اس کا ایک فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے، جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے۔ چونکہ اس میں جو تاریخ باؤنڈ کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ 10 اپریل تک یہ پیسے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مہیا کرے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ چند مہینوں میں 11 ارب ڈالر کے قریب قرضہ واپس کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول کے معاہدے کو جلد ہی حتمی شکل دے دی جائے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک بھی مختلف شعبوں میں ترقی کریں گے۔ انہوں نے چائنا اکنامک نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ سی پیک ایک 2 طرفہ منصوبہ ہے، تاہم اس سے خطے کے تمام ممالک کو فائدہ ہوگا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ جنوب مشرقی ایشیائی، مشرق وسطی اور افریقی ممالک بھی سی پیک کے ساتھ منسلک ہونے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سی پیک کے تحت جاری منصوبوں میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے، جس سے ہمیں توانائی کے بحران پر قابو پانے اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے میں بہت مدد مل رہی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ایک خطہ ایک شاہراہ سمیت علاقائی تعاون کے دیگر منصوبوں کے تحت پاکستان، چین اور دیگر ملکوں کے درمیان تجارت کے شاندار مواقع دستیاب ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں حالیہ مثبت پیش رفت کے دوران دونوں ملکوں نے سیکیورٹی کے علاوہ دوسرے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی ورلڈ افیئرز کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میتھیو ہیوز سے واشنگٹن میں ملاقات میں انہوں نے تعلیمی اداروں اور ماہرین تعلیم کے درمیان پائیدار تعلقات کے لیے ٹھوس بنیادوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ میتھیو ہیوز نے پاکستان میں شراکت داروں کے ساتھ تعاون بڑھانے پر رضامندی ظاہر کی۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون عام انتخابات 2023 صرف اسی صورت میں قبول کرے گی جب ہماری قیادت کو سیاسی عمل میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری۔ آج لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت عام انتخابات سے فرار نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ قوتیں ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں اور ملک میں موجودہ سیاسی اور معاشی بحران سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں۔ پاکستان آج خاص طور پہ معاشی اور عدلی اور سیاسی جو بحران ہے اس سے فائدہ اٹھا کے وہ قوتیں انٹرنیشنل پاکستان کے اداروں سے وہ باتیں منوانا چاہتی ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے دور میں ملک میں مہنگائی عروج پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ نظریہ ضرورت کے بجائے استعمال سے ملک کو نقصان ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں سینئر وکلاء نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ستر من اللہ کے اختلافی نوٹ کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کا فیصلہ کرنے کے لیے فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ ایسوسی ایشن کے بار ایسوسی ایشن کے رکن گوہر رحمان خٹک نے اے پی پی کو بتایا کہ جسٹس ستر من اللہ کے ریمارکس سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بھی مفاد میں ہے کہ وہ اعلیٰ مقدمات پر نظر ثانی کرے اور پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو فل کورٹ میں مکمل مواقع فراہم کرے۔ خیبر پختونخوا کے سابق ایڈوکیٹ جنرل عیسیٰ خان نے کہا کہ جسٹس ستر من اللہ، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے اٹھائے گئے معاملات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ فل کورٹ ہی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سپریم کورٹ قواعد و ضوابط اور طریقہ کار بل مشروعہ 2023 نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا ہے۔ یہ بل دونوں ایوانوں سے منظور ہونے کے بعد صدر کو منظوری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آئین پاکستان 1973 کے 50 سال کامیابی سے مکمل ہونے پر آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات پیر سے شروع ہوں گی۔ اس سلسلے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی خصوصی ہدایت پر ملک بھر کی سرکاری یونیورسٹیوں میں آئینی شعبے قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ شعبے عوام الناس اور طلبہ کو آئین کے خاص پہلوؤں اور اس کے ارتقاء کے تاریخی منظر سے آگاہ کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاک بزنس اور کراکورم ایکسپریس کا معیار بھی گرین لائن کی طرز پر بہتر کیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مختلف ٹرینوں کی دیکھ بھال اور ان کا معیار بہتر کرنے کے لیے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں شالیمار ایکسپریس کو آئندہ مہینے سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ریلوے کی زمین سے آمدن حاصل کرنے کے لیے مختلف تجارتی طریقوں پر غور کیا گیا۔ عالمی ادارے صحت اور سندھ حکومت کے محکمہ صحت نے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت سیلاب سے متاثر مراکز صحت بحال کیے جائیں گے۔ پاکستان میں عالمی ادارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر پلیتا ماہی پالا، سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل پیچیہک کراچی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب میں موجود تھے۔ معاہدے کے تحت صوبے کے 21 اضلاع میں 150 بنیادی صحت مراکز بحال کیے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے بی آر ٹی بس منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے اور اسے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں بی آر ٹی منصوبے پر اب تک کی پیش رفت کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
इजलास में BRT कॉरिडोर करंगी रोड सेक्शन की तामीर की भी मंजूरी दी गई, जबकि 340 बसों के लिए 11 एकड़ अराजी पर क्रिस्टियन कॉलोनी में एक बस डिपो की तामीर की भी सिफारिश की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मसीही बिरादरी को यकीन दिलाया है कि ईस्टर को सच्चे जज्बे के साथ मनाने के लिए उन्हें महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। आज एक बयान में निगरान वज़ीर आला ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बिरादरी के किरदार को सराहा। उन्होंने ईस्टर के मौके पर पंजाब भर में नकाइश से पाक इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। हिलाल अहमद गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन सलीम अहमद ने गिलगित में गवर्नर सैयद मेहदी शाह से मुलाकात की। उन्होंने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। सैयद मेहदी शाह ने खित्ते में हिलाल अहमद की कारकर्दगी को सराहा। वाबडा के चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी ने दयामर बादशाह डैम पर काम की जगह होने वाले धमाके में जाँ बहक और जख्मी होने वाले कारकुनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। इस साने में जाँ बहक होने वाले हर कारकुन के वारिस को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मी होने वालों को भी 5-5 लाख रुपए और मामूली जख्मी होने वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को पावर चाइना की जानिब से उनकी पॉलिसी के मुताबिक मुकम्मल माली मदद दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और डेरा इस्माइल खान डिवीजनल और पेशावर नौशहरा और स्वात के अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जुमे से शुरू होगी। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 5 रोज़ा खसूसी इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक के उम्र के 31 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमे सेहत ने 15,000 से ज्यादा टीमें तश्कील दी हैं, जो कि घर घर जाकर पोलियो के खतरे पिलाने के अमल को यकीनी बनाएंगे। इसी तरह बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, अफगान महाजरीन के कैंप समेत दीगर अवामी मकामात पर पोलियो के खतरे पिलाने के लिए महकमे सेहत के खसूसी अफराद मौजूद होंगे। मुहिम के दौरान पोलियो टीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी धमाका खेज मवाद से टकराने से 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और दीगर 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेडियो पाकिस्तान की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन पैगाम रमजान को जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है और मुल्क भर से सामीन की कसीर तादाद ट्रांसमिशन देख रही है। मशहूर आलिम दीन हाफिज ताहिर महमूद ने जो आज की रमजान ट्रांसमिशन में शरीक थे, कहा कि इस्लाम ने अक़लियतों पर बिलखुसूस उनकी समाजी और कानूनी हैसियत के हवाले से मुस्बत असरात मरतब किए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम अक़लियतों के हुकूक को तस्लीम करता है और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करता है। आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सरफराज के भट्टी ने खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में हिस्सा लेते हुए कहा कि गैंठिया के मरीजों को माह रमजान में खुसूसी एहतियात की ज़रूरत है ताकि उनकी हालत मज़ीद ना बिगड़े। उन्हें रोज़े के औकात में जिस्मानी मशक्क़त से बचना चाहिए ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। नात ख्वां शुमाइला फरीदून ने बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। इसके अलावा तलावत कलाम पाक माह तर्जुमा भी नशरियात का हिस्सा है। मुल्क भर से अवाम शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक फ़ोन नंबर 051920890 पर कॉल करके बराह रास्त नशरियात में हिस्सा ले सकते हैं। ये खुसूसी नशरियात रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट समेत रेडियो पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुलाहिजा की जा सकती हैं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने कल से शुरू होने वाली सालाना बैसाखी तकरीबात में शिरकत के लिए 2,856 सिख यात्रियों को वीज़े जारी कर दिए हैं। ये वीज़े नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने मजहबी मकामात की ज़ियारत के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1974 के मुआहदे के तहत जारी किए हैं। नई दिल्ली से जारी किए गए ये वीज़े उन वीज़ों के अलावा हैं जो दीगर ममालिक से सिख यात्रियों को इन तकरीबात में शिरकत के लिए जारी किए गए हैं। इस अहम मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर सलमान शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात की हिफाजत और दौरा करने वाले यात्रियों को ज़रूरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है। दौरे के दौरान सिख यात्री इस माह की 18 तारीख को भारत वापसी से कबल डेरा साहब, पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर साहब जाएंगे। उधर भारतीय हुकूमत ने सिख यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम करने से इनकार कर दिया है। सिख यात्री अब वाघा सरहद के जरिए पैदल पाकिस्तान में दाखिल होंगे और फिर बस से ननकाना साहब जाएंगे।
पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर सरदार अमीर सिंह ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि भारतीय यात्रियों को अपनी हुकूमत के साथ इस अहम मसले पर बात करनी चाहिए ताकि सिख यात्रियों के लिए सफर को आसान और आरामदेह बनाने के लिए वाहगा से अटारी तक ट्रेनें चलाई जा सकें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहदी आज़ादी की हिमायत में बरी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के बयान का खैर मकदम किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के दौरे कंट्रोल लाइन और कश्मीरियों से यकजहती के इरादे से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ कश्मीरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और मुसल्लह अफवाज का हौसला बुलंद हुआ है। भारत की हिंदुत्वा हुकूमत ने अगले माह श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास से हफ्तों कबल भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पकड़ धकड़ की कार्रवाइयों और रात के वक्त छापों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। उधर भारत ने पंडितों की बहाली की आड़ में वादी कश्मीर में गैर कश्मीरी हिंदुओं को आबाद करने के लिए कई कॉलोनियों की तामीर मुकम्मल कर ली है, जिसका मकसद मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मोहम्मद सलीम जरगर और डॉक्टर मसब ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कश्मीर के बारे में पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के बयान को भी सराहते हुए कहा कि इस बयान ने गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ कश्मीरी अवाम में एक नई रूह फूंक दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों के खिलाफ भारत की नस्ल परस्त हुकूमत की जारहियत का मौसर नोटिस ले। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी ने मीरपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में बिगड़ती हुई सियासी और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और कश्मीर के देरीना तनाज़े के हल में अपना अहम किरदार अदा करे। हुर्रियत रहनुमा ने पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर के कश्मीर बारे हालिया बयानात को सराहते हुए कहा कि आर्मी चीफ के दो टोक मौक़िफ़ से कंट्रोल लाइन के पार एक मुस्बत पैगाम गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर कॉज के साथ यकजहती और हिमायत के इरादे से मकबूजा कश्मीर के अमन पसंद अवाम में अज़्म की लहर बेदार हुई और उनका मोराल बुलंद हुआ है। भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तलबा ने बिहार और भारत के दीगर इलाकों में मुसलमानों पर हालिया मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा ने यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे से बाब सैयद की तरफ मार्च किया और सुबह बिहार के वज़ीर आला आशीष कुमार और नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ नारेबाजी की। तलबा ने बिहार शरीफ में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, जहां सदियों कदीम मदरसा अजीजिया और मस्जिद की हुदूद में कुरान पाक के सैकड़ों नुस्खों को नजर आतिश कर दिया गया था। ईरान और तुर्की ने इजरायली हुकूमत के वहशियाना इक़दामात के खिलाफ मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास बुलाने की जरूरत पर जोर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान मस्जिद अक्सा पर इजरायली हमलों के बाद बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने सेहूनी हुकूमत की जारहियत का जवाब देने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के लाएअमल के अंदर इस्लामी मुल्कों के दरमियान अजीम तर इत्तेहाद की जरूरत पर इत्तफाक किया। चीन ने ताइवान के गिर्द 3 रोज़ा जंगी मशकों का आगाज किया है, जिसका मकसद बीजिंग की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक बयान में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तर्जमान शी यिन ने कहा कि ये मशकें ताइवान की आज़ादी की हामी कुव्वतों, बैरूनी ताकतों के गठजोड़ और उन्हें उकसाने वालों के लिए सख्त इंतबाह है। उधर ताइवान के सदर त्साई इंग-वेन ने मशकों पर शदीद तनकीद करते हुए अमरीका और दीगर हम ख्याल मुल्कों के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। शुमाली कोरिया ने ज़ेर-ए-आब एटमी ड्रोन हमले का एक और कामयाब तजुर्बा किया है। शुमाली कोरिया ने यह तजुर्बा एक ऐसे वक्त में किया है जब अमरीका और जनूबी कोरिया ने हाल ही में बड़े पैमाने पर फौजी मशकें की हैं। अमरीकी बहरिया ने बहरीन में मुतय्यन अपने 5वें बहरी बेड़े की मदद के लिए एटमी तवानाई से चलने वाली गाइडेड मिसाइल बरदार आबदोज भेजी है। अमरीकी कमांडर टिमोथी हॉकिंस ने एक बयान में कहा है कि इस आबदोज से इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। और अब रेडियो खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़िया-उल-हक लांगू ने कहा है कि सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में खेलों की सरगर्मियों को अव्वलीन तरजीह देती है।
उन्होंने ये बात आज जिला कलात में फुटबॉल टूर्नामेंट के मौके पर खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत नौजवानों के लिए सेहत अफजा खेलों की सरगर्मियों की फराहमी के लिए सूबे में फुटबॉल के नए मैदान तामीर कर रही है। उन्होंने कहा कि कलात के लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। पाक आर्मी ने इस्लामाबाद में वापडा को शिकस्त देकर 17वीं कौमी विमेन बेसबॉल चैंपियनशिप जीत ली। हायर एजुकेशन कमीशन तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद इब्रार ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर ने कहा कि चैंपियनशिप में खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इस कैंप से खवातीन की एशिया कप की कौमी टीम को तैयार करने में मदद मिलेगी, जो इस महीने हांगकांग में होगा। एक 4 रुकनी पाकिस्तानी ब्रिज टीम एशिया की ब्रिज फेडरेशन और मशरिक वस्ता चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी, जो कि आइंदा माह से लाहौर में शुरू होगी। इस्लामाबाद के खिलाड़ियों ने सीनियर टीम में इंतखाब के लिए मुकाबले में शिरकत की थी। कराची की सीनियर टीम सख्त प्रैक्टिस के मरहले से गुजरकर फातेह टीम हो सकती है, क्योंकि इस टीम ने दुबई और दीगर जगहों पर होने वाले हालिया मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली आइंदा होने वाली काउंटी चैंपियनशिप 2023 खेलने के लिए इंग्लैंड की वर्सेस्टरशायर काउंटी क्लब में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वर्सेस्टरशायर के चेयरमैन पॉल पॉरिजन ने कहा कि हमें खुशी है कि अजहर अली ने हमारी क्लब में दोबारा शामिल मुल्की होकर आइंदा साल के लिए मुआहदा किया। फीफा की मुकर्रर करदा कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक ज्ञानी ने इन्फेंटिनो को आलमी फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा का दूसरी मुकम्मल मुद्दत 2023-2027 का दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। PFF के वफ्द ने हारून अहमद मलिक की क़यादत में 73वीं कांग्रेस में शिरकत की। NC के अरकान मोहम्मद शाहिद, नियाज खोकर और सऊद हाशमी भी उनके साथ थे। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन रवा माह की 27 तारीख से लाहौर में एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का इनेकाद कर रही है। चैंपियनशिप में स्ट्रोक प्ले, एमेच्योर, सीनियर और खवातीन चैंपियनशिप, इंटर एसोसिएशन में और सीनियर चैंपियनशिप, इंटरनेशनल टीम मैच में इंटरनेशनल टीम मैच खवातीन और जेसम्पसन ट्रॉफी शामिल है। ये तो थी खेलों की खबरें और अब पेश है तिजारती खबरें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुल्क में सूदी निज़ाम के खात्मे और इस्लामी मालियाती निज़ाम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात वफाकी शरीयत कोड के रिबा से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद के बारे में रहबर कमेटी के दूसरे इजलास की ऑनलाइन सदारत करते हुए कही। वज़ीर ख़ज़ाना ने आगाही, इस्तेदादी कार में इजाफे, कानूनी और रेगुलेटरी इस्लाहात, बैनुल अक़वामी मयारात पर अमल दरामद और रिवायती बैंकिंग निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक ढालने के तनासुर में स्टेट बैंक की जानिब से वज़ा किए गए मुतबादिल लाएअमल पर नुमायां पेशरफ्त को सराहा। इजलास में मालियाती निज़ाम से रिबा के खात्मे में टास्क फोर्स को तलब और रसद के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और महदूद वक्त में मुश्किलात के हल के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का जायजा लिया गया। हॉलैंड में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात रिजर्व में फरवरी के दौरान माहाना बुनियादों पर 18% की नमू रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के आदाद और शुमार के मुताबिक फरवरी में हॉलैंड में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $5.2 मिलियन ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 18% ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में हॉलैंड में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $4.4 मिलियन ज़र मुबादला मुल्क अरसाल किया था। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में हॉलैंड से तरसीलात रिजर्व में माहाना बुनियादों पर 21% नमू रिकॉर्ड की गई। मुल्क से तंबाकू की बरामद में जारी माली साल के पहले 8 माह में सालाना बुनियादों पर 41.10% नमू रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के आदाद और शुमार के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक तंबाकू की बरामद से मुल्क को $52.78 मिलियन ज़र मुबादला हासिल हुआ। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हुजूम $6 अरब से तजावज़ कर गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी आदाद और शुमार के मुताबिक सितंबर 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2023 तक की मुद्दत में RDA के जरिए समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हुजूम $6.005 अरब तक पहुँच गया है। एक अमरीकी इदारे ने पाकिस्तान समेत बदहाल मईशतों के $520 अरब का कर्ज माफ करने की सिफारिश कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि माशी बदहाली की शिकार मईशतों पर वाजिब अदा $520 अरब के कर्ज को माफ किया जाना चाहिए। ये थीं तिजारती खबरें।
और अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ क्लासिकल और नीम क्लासिकल गुलूकार असद अमानत अली खान की आज 16वीं बरसी मनाई गई। मजीद तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। असद अमानत अली खान का ताल्लुक मौसीकी के मशहूर पटियाला घराने से था। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अमानत अली खान और दादा उस्ताद अख्तर हुसैन खान से हासिल की। असद अमानत अली खान ने अपने चचा हामिद अली खान के साथ अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया और इन दोनों की जोड़ी ने क्लासिकी गायकी को एक नई जहत दी। सन 1974 में उस्ताद अमानत अली खान की अचानक वफात के बाद असद अमानत अली खान ने उनके गाए हुए खूबसूरत नगमों से अपनी शोहरत के सफर का आगाज किया। उन्होंने क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गीत, गजलें और फिल्मी गाने गाए जो अपने दिलकशी और सुरीलेपन की वजह से जुबाने ज़दे आम हुए। उन्होंने जिन फिल्मों को अपनी गायकी से सजाया उनमें शम्मे मोहब्बत, इंतखाब, जिंदगी, तराना और आंधी और तूफान के नाम शामिल हैं। सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। असद अमानत अली एक बहुत अच्छे सोज़ख्वां भी थे और ख़ुसूसन मीर मूनस लखनवी का सलाम पढ़ने में इख्तिसास रखते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2006 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। पाकिस्तानी शोबे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद जनाए हालीवुड की मशहूर सीरीज स्टार वॉर्स की फिल्मों को डायरेक्ट करेंगी। काफी महीनों से ये इत्तला थी कि मिस मार्वल की फिल्मसाज उबैद जनाए स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की नई फिल्म को डायरेक्ट करेंगी। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने निज़ाम शमसी के 7वें सैयारे यूरेनस की नई तस्वीर जारी की है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बनाया गया है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने सेमाही ऑपरेटिंग मुनाफे में 96% कमी का तखमीना लगाने के बाद मेमोरी चिप की पैदावार में कमी का फैसला किया है। ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तजा से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत में मिठी और शोर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 31, मरी 19, लाहौर 34, कराची 38, पेशावर 33, कोयटा 26, मुजफ्फराबाद 32, गिलगित 27, स्कर्दू 19, श्रीनगर 21, जम्मू 32, लेह 12, पुलवामा 19, अनंतनाग 18 और शोपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में दिन के औकात में गर्म रहेगा। इस दौरान मैदानी और साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बलोच नेशनल आर्मी के सरगना की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंदी के खात्मे और अमन के एक नए दौर के आगाज में मदद मिलेगी। वज़ीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए नई स्कीमें मुतारिफ कराने का इरादा रखती है। भारतीय हुकूमत ने बैसाखी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को खुसूसी ट्रेनिंग फराहम करने से इनकार कर दिया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबाए उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क हमाद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क नूर हुसैन चंद, मुदीर खेल की खबरें मोहम्मद रिजवान खान, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें नबीला शाहीन, कोऑर्डिनेशन एडिटर फहद शिराज अहमद, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور مجاہد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔